ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت اور لطف اندوز ہوگا۔ اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔ تشریح: کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماں سوائے تمام دنیا اس کے سامنے کمتر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کے اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری اور نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ بعض کاشتکار سڑکوں پر قبضہ کرنے سے راہگیروں کو دشواریاں، قبضہ ہٹانے کی بانسواڑہ ایم ایل اے کی ہدایت کے باوجود عہدیداران کی خاموشی معنی خیز۔ موسیٰ ندی معاملے پر کانگریس حکومت عوام اور ایوان کو کر رہی گمراہ، ایم ایل سی کے کویتا کا الزام۔ ریاست بھر میں سردی کی شدید لہر، مزید 2 روز درجہ حرارت میں کمی واقع ہونے کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی، احتیاط ضروری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کچھ کسان اہم سڑکوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے اس مسئلے کو بانسواڑہ ایم ایل اے پوچرام کے علم میں لایا۔ ایم ایل اے کے حکم کے باوجود عہدیداران کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ ورنی اور کوڑگے منڈلوں کو جوڑنے والی مرکزی سڑک چگڑا پلی سے ہو کر سلیمان نگر جانے والی سڑک پر کچھ کسان سڑکوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے یہ مسئلہ بانسواڑہ ایم ایل اے پوچرام سرینیواس ریڈی کے علم میں لایا، جو اس وقت کے اسپیکر کی حیثیت سے گاؤں
चिकडापल्ली आए थे। उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सड़क का सर्वे करें और उसकी निशानदही करें जिस पर कब्जा किया जा रहा और मुनासिब कार्रवाई करें। हुक्म के बावजूद अफसरान ऐसे काम कर रहे जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हुक्काम की जानिब से तवज्जो न देने की वजह से पूरी सड़क पर कब्जा हो चुका है और जो सड़क 40 फीट होनी चाहिए थी वो 15 फीट तक पहुंच चुकी है। माजी में अंबा से भारत केसी फार्म तक सीसी सड़क की तामीर पर 72 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मजीद 900 मीटर सीसी सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद ये चिकडापल्ली गांव तक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। चिकडापल्ली गांव वालों के मुताबिक निजाम सागर नहर के दरमियान से 100 फीट की नहर की हद थी और इसके साथ वाली सड़क मजीद 34 फीट थी। उन्होंने कहा कि किसानों के तजावुजात से सड़क तंग हो जा रही है। एहलकार जवाब दे और महफूजा सड़क की निशानदही करके मुनासिब कार्रवाई करने का गांव की आवाम ने इजहार किया। एमएलसी के कविता ने मीडिया पॉइंट पर बातचीत करते हुए पूछा कि रियासती हुकूमत मूसा नदी की फंडिंग के बारे में राज क्यों रखती है। एमएलसी के कविता ने मीडिया पॉइंट पर बातचीत की और कहा कि हुकूमत मूसी प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में राज क्यों रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 19 सितंबर 2024 को वर्ल्ड बैंक को एक तजवीज़ पेश की है कि जामा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स DPRS तैयार है, लेकिन ये कहना मज़ाहिका खैस है कि 17 सितंबर को तेलंगाना असेंबली में कोई DPR पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी बैंक से 4100 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसे अवामी फोरम्स में बहाली के मंसूबे के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। నిన్న శాసన మండలిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మేము అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ప్రభుత్వం తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చింది। మీరు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు, మా దగ్గర నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పిన తర్వాత మరి గౌరవ శ్రీధర్ బాబు గారు ఒప్పుకొని మేము వరల్డ్ బ్యాంక్కి ప్రపోజల్ పంపిన మాట వాస్తవమే అని చెప్తూనే మళ్ళీ మమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ప్రజలను అట్లానే సభను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా మేము ఇచ్చినటువంటి మాట వాస్తవమే, కానీ ఇంకా కూడా డిపిఆర్ లేదు, డిపిఆర్ లేకుండానే ప్రపంచ బ్యాంక్కి ఇచ్చాము, అది వేరే ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇచ్చామని చెప్పి వారు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు। నేను నిన్న ఏదైతే చెప్పానో నిర్దిష్టంగా నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని, ఆ ఆధారాలతోని ఇవాళ ప్రజల ముందుకు నేను రావడం జరిగింది। ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణను ప్రపంచ బ్యాంకుకు తాకట్టు పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। గత 10 సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి రుణాన్ని తీసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు। ఎందుకంటే ప్రపంచ బ్యాంకు యొక్క చీకటి రాజకీయాలు అన్ని దేశాలలో ఎట్లా జరుగుతాయో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎన్నడూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణలోకి ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు। కానీ అధికారంలోకి వచ్చినాక సంవత్సరం లోపలనే రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ప్రపంచ బ్యాంక్ ముందు మోకరిల్లుతా ఉన్నారు। మూసీ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాలేదు అని చెప్పి వారు జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రాజెక్ట్ కోసం వెచ్చించాల్సినటువంటి అంచనా వ్యయాన్ని ఇటీవల ఎంపిక చేసినటువంటి కన్సార్షియం ద్వారా డిపిఆర్ని ప్రిపేర్ చేస్తామని చెప్పి నిన్న అసెంబ్లీలో చెప్పింది। అంటే నిన్న డిసెంబర్ 17 రోజు ఇంకా డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాలేదని అసెంబ్లీలో చెప్తారు, 19 సెప్టెంబర్ నాడు ప్రపంచ బ్యాంకుకి మా దగ్గర ఆల్రెడీ డిపిఆర్ ఉందని చెప్తారు। ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ 19 సెప్టెంబర్ నాడు డిపిఆర్ ఉంది అని చెప్పిన తర్వాత నెల తర్వాత 4 అక్టోబర్ దాదాపు 20 రోజుల తర్వాత అక్టోబర్ 4వ తారీఖు నాడు 160 కోట్లు ఇచ్చి ఆ కన్సార్షియం ఏదైతే ఉందో మ్యాన్హాట్ కన్సల్టెన్సీస్, అట్లానే కుష్మెన్ అండ్ వేక్ఫీల్డ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అట్లానే RIOS డిజైన్ స్టూడియోస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఈ ముగ్గురు కలిసినటువంటి సిండికేట్కి మూసీ ప్రాజెక్ట్ డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం అక్టోబర్లో మరి డబ్బులు రిలీజ్ చేసింది। సెప్టెంబర్లోనేమో ఆల్రెడీ డిపిఆర్ ఉందంటారు మూసీ ప్రాజెక్ట్కి, అక్టోబర్లోనేమో డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేసేటటువంటి సంస్థకు డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తారు। డిసెంబర్లో అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రభుత్వం నిలబడి మరి డిపిఆర్ లేదు, ప్రపోజల్ లేదు, మేము వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర మూసీ కోసం నిధులు అడగలేదు అని అంటారు। మరి ఇది ఎందుకోసం? నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇవాళ
అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఎందుకోసం అబద్ధం చెప్తున్నారు? ఎవరి కోసం అబద్ధం చెప్తున్నారు? నిజంగా ఏం చేయదలుచుకున్నారు అన్నది ప్రజలకు పారదర్శకంగా చెప్పలేనటువంటి అసక్తత ఏమున్నది? ఇది ఎవరి లాభం కోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు? 55 కిలోమీటర్లు మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో 10,000 కోట్లతో బ్రిడ్జ్ కడతామని చెప్తున్నారు. దాదాపు 16,000 ఇండ్లను ఇప్పటికే మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో మీరు మార్కింగ్ చేసి పెట్టినారు. వాటి మీదకి ఇవాళ బుల్డోజర్లు పంపుతారా, రేపు బుల్డోజర్లు పంపుతారా అర్థం కానటువంటి ఒక భయానక స్థితి అక్కడ ప్రజల్లో ఉన్నది. మరి ఇప్పటికన్నా మీరు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వండి. ఈ ఇండ్లను తీసేస్తామని చెప్పండి. తీసేసిన ఇండ్లకు ఎక్కడ ప్రత్యామ్నాయం ఇస్తారో చెప్పండి. రీహాబిలిటేషన్ ఎట్లా చేస్తారో చెప్పండి. పోనీ రేపు వచ్చేటటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్లో ప్రజలకు ఏమొస్తుందో చెప్పండి. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ఏం లాభమో చెప్పండి. ఇవి చెప్పకుండా దాసిపెట్టి దాపరికంగా ఎందుకు? आरमूर शहर के 35 वार्डों में इंदिरा हाउस सर्वे का काम जारी है। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू ने आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों का लिया जायजा। अहल मुस्तहिकीन को इंदिरा मकानात फ्राहम करने के लिए सर्वे के अमल को शिफाफ तरीके से अंजाम देने की ओहदेदारान को म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। किया जा रहा इस अमल को बारीक बीनी से देखते हुए बेघर गरीबों को रिहाइश फराहम करने के मकसद से इंदिरा मकानात को मंजूर करने दरख्वास्त दहिंदगान से कहा कि वो अपने मुतल्लिका दस्तावेज़ात पहले से तैयार रखें ताकि सर्वे का अमल तेजी से हो सके। हुकूमती रहनुमाई खतूत की पैरवी करते हुए बगैर किसी गलती के तफसीलात को जमा करके इंदिरा ऐप में सही तरीके से दर्ज किए जाए। जमीन की मिल्कियत के दस्तावेज़ात सर्वे के लिए इंतहाई अहम है। दरख्वास्त गुजार के पास जाती मकान के लिए जमीन है या नहीं, अगर हो तो उससे मुतल्लिक सबूत ना होने की सूरत उनके टैक्स रसीद, सफेद राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए। मुस्तहिक अफराद के साथ साथ मकान की छत और जमीन से मुतल्लिक तस्वीर ऐप में दुरुस्त तरीके से अपलोड की जाएंगी। इस मौके पर उनके हमरा ओहदेदार गजानन ए श्री दीगर भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर गड़गू गंगाधर बाहैसियत तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर्स कमीशन मेंबर जायजा हासिल करने पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस की जी गंगाधर से मुलाकात, वो तहनीत के जरिए मुबारकबाद। साबिका जिला सदर कांग्रेस व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर को रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर्स कमीशन मेंबर नामजदगी वो जायजा हासिल करने पर सीनियर कॉरपोरेटर डिवीजन 58 धारूगली मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने नौ मुंतखब मेंबर गड़गू गंगाधर से मुलाकात की और उन्हें शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कहा कि गड़गू गंगाधर ने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहते हुए सदर यूथ कांग्रेस से अपने सियासी सफर का आगाज किया और अपने एक तवील सियासी सफर में उन्होंने टाउन सदर कांग्रेस, जिला सदर कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदे पर फायज रहते हुए कांग्रेस पार्टी के विखार को परवान चढ़ाया और पार्टी को मुकामी सियासी व अवामी सतह पर इंतहाई ताकतवर और मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। रियासत गिर बस जाता 19 दिसंबर को निजामाबाद जिला पहुंचेंगी। जिले के आशा वर्कर्स इस यात्रा में बड़े पैमाने पर शिरकत करें और उसे कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील। जिले में CITU के दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स के मसाइल को लेकर मुनाकिद होने वाली रियासती बस जाता 19 दिसंबर को निजामाबाद जिले आएंगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की जानिब से निकाली जाने वाली ये बड़ी रैली निर्मला हुदैया स्कूल से होती हुई CITU ऑफिस पहुंचेगी। बताया कि इसके बाद जलसे-आम मुनाकिद होगा। तमाम आशा वर्कर से गुजारिश की कि जिला भर में बड़े पैमाने पर शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स के बिला मुआवजा काम और मेहनत को तस्लीम नहीं कर रही। ఆశా వర్కర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలనే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే ఆశా వర్కర్లకు అసెంబ్లీలో ఏదైతే బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఫిబ్రవరిలో జరుగుతూ ఉంది, ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలలో ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇవ్వాలని, ఉద్యోగ భద్రత, ESI, PF సౌకర్యం కల్పించాలని, ప్రమోషన్లు కల్పించాలని, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలనేది ఈ డిమాండ్లతోటి కొనసాగుతున్న ఈ ఏదైతే బస్సు జాతను
ఆశా వర్కర్లు తమ సమస్యల మీద జరుగుతున్న ఈ జాతను అందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఏదైతే ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే హామీ ఇవ్వాలి, దాన్ని నిర్ణయం చేయాలనేదే సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత కాలంలో ఎన్నికల కంటే ముందు ఏదైతే ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం అమలు చేస్తామని చెప్పిర్రు, మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారు, కానీ ఈ రోజు వరకు అమలు కాలేదు. బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా కూడా ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ అమలు చేయకుంటే సమ్మెలో పోతా ఉన్నారు ఆశా వర్కర్లు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ఆశా వర్కర్లకు సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేయాలనేదే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఇప్పటి వరకు గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంకు ఏ గతి పట్టిందో అదే విధంగా SBI के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो से अवाम होशियार है वरना लग सकता है चूना। SBI का फर्जी वीडियोस पर वजाहती बयान। सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के आला इंतजामिया के नाम से भारी मुनाफे के वादे करते हुए फर्जी वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में SBI ने वजाहत जारी करते हुए इन वीडियोस को फर्जी करार दिया। SBI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए अवाम को मुतंबा करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर हमारे बैंक इंतजामिया के नाम से गर्दिश करने वाली डीप फेक वीडियोस पर यकीन ना करें। इन वीडियोस में बताई गई स्कीमात का बैंक या बैंक के हुक्काम से कोई ताल्लुक नहीं। बयान में मजीद कहा कि फर्जी वीडियोस में अवाम को सरमायाकारी के मशवरे दिए जा रहे और गैर मामूली मुनाफे के वादे किए जा रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कोई गैर हकीकी और गैर मामूली मुनाफा देने वाला वादा नहीं करता। अवाम से गुजारिश है कि वो इन धोखाधड़ी पर मबनी वीडियो से मोहतात रहे और किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। SBI ने अवाम को इन फर्जी और गुमराहकुन वीडियोस के खिलाफ होशियार रहने की तलकीन की ताकि वो किसी किस्म की माली धोखाधड़ी से महफूज रह सके। खवातीन वो दो शीशाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपके ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शीशाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981116967 9390414785। सिरकुंडा मंडल में बरखी शॉक लगने की वजह से घर का साजो सामान जलकर खाकस्तर। मुकामी अवाम ने आग पर काबू पाया जिससे बड़ा हादसा टल गया। हुकूमत से इमदाद की मुतासरीन ने की अपील। सिरकुंडा मंडल के ताटीपल्ली गांव में दोपहर के वक्त बरखी शॉक सर्किट की वजह से एक घर में आग लगी। एम सोगुना का घर जलकर खाकस्तर हो गया। टीवी, फ्रिज, कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने के बाद मुकामी अवाम ने आग पर काबू पाया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। SI राम और रेवेन्यू ऑफिसर नागन्ना ने जाए हादसे पर पहुंचकर पंचनामा दर्ज किया और मुतासरा के खानदान वालों ने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक सर्दी की शदीद लहर। कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने किया इजहार। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा ने कहा है कि कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद,
कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, सिंगारेड्डी और मेदक असलामी कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की पेश कयासी की है। अलावासी महकमा ने कहा कि परसों कहीं कहीं हल्की सी दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। मजीद बताया कि खलीज बंगाल के जुनूब मगरिबी हिस्से में एक कम दबाव का इलाका बना हुआ है जो औसत समंदरी सतह से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस कम दबाव के अगले 2 दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके मगरिब शुमाल की सिमत में तमिलनाडु के साहिल की तरफ बढ़ने का इम्कान है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बास काश्तकार सड़कों पर कब्जा करने से राहगीरों को दुश्वारियां, कब्जा हटाने की बांसवाड़ा एमएलए की हिदायत के बावजूद ओहदेदारान की खामोशी मानाकैस। मूसा नदी मामले पर कांग्रेस हुकूमत अवाम और ऐवान को कर रही गुमराह, एमएलसी के कविता का इल्जाम। रियासत भर में सर्दी की शदीद लहर, मजीद 2 रोज दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होने की महकमा मौसमियात की पेश कयासी, एहतियात जरूरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।